આજે 29 એપ્રિલ અનાગારિક ધમ્મપાલનો પરિનિર્વાણ દિવસ છે, જેમણે ભારતમાં બુદ્ધનું નામ, તેમની સાથે સંકળાયેલા સ્થળો અને બુદ્ધના વચનોને પુનર્જીવિત કર્યા અને તેમને એશિયા, યુરોપ અને અમેરિકામાં ફેલાવ્યા. તેમણે જ સ્વામી વિવેકાનંદને શિકાગોમાં યોજાયેલી વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં તેમને ફાળવવામાં આવેલા સમયમાંથી થોડો સમય આપીને બોલવાની તક આપી હતી. અનાગરિક ધર્મપાલનો જન્મ 17 સપ્ટેમ્બર 1864ના રોજ કોલંબોના એક ખૂબ જ સમૃદ્ધ ખ્રિસ્તી પરિવારમાં થયો હતો. નામ હતું ડેવિડ હેવાવિતારેન. ડેવિડ થિયોસોફિકલ સોસાયટીના સ્થાપક મેડમ મેરી અને બૌદ્ધ ધર્મના વિદ્વાન કર્નલ હેનરી સાથે સંપર્કમાં આવ્યા. યુવાનીમાં ડેવિડ બુદ્ધના ઉપદેશોથી ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા અને તેમણે પાલી ભાષા શીખી હતી. પછી તેમણે પોતાનું નામ બદલીને અનાગરિક ધમ્મપાલ રાખ્યું. અનાગારિક એટલે બિનનાગરિક એટલે હવે કોઈ સમુદાય કે શહેરનો નાગરિક નથી. સામાજિક બંધનોથી મુક્ત, કોઈપણ દુન્યવી જોડાણ વિનાનો વ્યક્તિ. જ્યારે તેમણે સર આર્નોલ્ડનું પુસ્તક ધ લાઇટ ઓફ એશિયા વાંચ્યું, ત્યારે એવું લાગ્યું કે જાણે બુદ્ધભૂમિ ભારતે તેમણે બોલાવ્યો હોય. 1891માં તેઓ બોધગયા આવ્યા. અહીં મહાબોધિ વિહાર પર કબજો અને પૂજારીઓ દ્વારા કરવામાં આવતી ધાર્મિક વિધિઓ જોઈને તેઓ દુઃખી થયા. એ જ રીતે કુશિનગર અને સારનાથની દુર્દશા જોવા મળી. પછી એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે બુદ્ધના ઉપદેશોને ભારતમાં ફરીથી પ્રસારિત કરવામાં આવશે. મહાબોધિ સોસાયટીની સ્થાપના કરી, જેનું કાર્યાલય કોલંબોથી કોલકાતા ખસેડવામાં આવ્યું. ભારતમાં બૌદ્ધ સ્થળોની દુર્દશાથી સમગ્ર વિશ્વને વાકેફ કરાવ્યું. આખરે તેમના પ્રયત્નોને કારણે જ બૌદ્ધો મહાબોધિ વિહારમાં પ્રવેશવા લાગ્યા. 1893માં શિકાગોમાં યોજાયેલી વિશ્વ ધર્મ સંસદમાં બૌદ્ધ પ્રતિનિધિ તરીકે અનાગરિકા ધર્મપાલને ભારતમાંથી આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. સ્વામી વિવેકાનંદને સત્તાવાર આમંત્રણ મળ્યું ન હતું. તે દિવસોમાં સ્વામી વિવેકાનંદ કોલકાતામાં અનાગરિકા ધમ્મપાલના સંપર્કમાં હતા. તેઓ મિત્રો હતા, તેથી આયોજકોની વિનંતી પર અનાગરિક ધમ્મપાલે સ્વામી વિવેકાનંદને તેમના ભાષણના સમયમાંથી સમય આપ્યો હતો. ધર્મ સંસદમાં આવેલા વિશ્વના વિવિધ ધર્મોના વિદ્વાનો અનાગરિક ધમ્મપાલ દ્વારા બૌદ્ધ ફિલસૂફી પર આપેલા ભાષણથી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા અને બુદ્ધના ઉપદેશો અને ભારત ભૂમિથી ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા. સ્વામી વિવેકાનંદે હિન્દુ દર્શન પર ભાષણ આપ્યું. ભારતમાં બૌદ્ધ ધર્મને પુનર્જીવિત કરનાર આ મહાન પુરુષે 13 જુલાઈ 1931ના રોજ બૌદ્ધ સાધુ તરીકે ત્યાગનું વ્રત લીધું અને તેમને ભિક્ષુ દેવમિત્ર ધમ્મપાલ કહેવામાં આવ્યા. તેમણે સતત 40 વર્ષ સુધી ભારત, યુરોપ અને અમેરિકામાં કરુણા અને મિત્રતાના બૌદ્ધ ધમ્મનો ઉપદેશ આપ્યો. તેમને 29 એપ્રિલ 1933ના રોજ નિર્વાણ પ્રાપ્ત થયું. તેમના અવશેષો સારનાથના મૂળગંધા કુટી વિહારમાં સચવાયેલા છે. આવા બોધિસત્વને હું વારંવાર નમન કરું છું. તેમની યાદમાં પાલી ગૌરવ દિવસ 17 સપ્ટેમ્બર સમગ્ર વિશ્વમાં ઉજવવામાં આવે છે. આ ફોટો શિકાગો ખાતે ડાબેથી જમણે આ દુર્લભ ચિત્રમાં વીરચંદ ગાંધી, જૈન ધર્મ, અનગરિકા ધર્મપાલ, શ્રીલંકાથી દક્ષિણ બૌદ્ધ ધર્મ, સ્વામી વિવેકાનંદ, હિન્દુ ધર્મ, અને જી. બોનેટ મૌરી, એક ફ્રેન્ચ પ્રોટેસ્ટન્ટ ઇતિહાસકાર, શિકાગો, 11 સપ્ટેમ્બર 1893ના રોજ વિશ્વ ધર્મ સંસદના મંચ પર. 76 साल पहले जो काला कानून बना था 1949 एक्ट, बीटी एक्ट, जिसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं 77 दिनों से. आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है.
बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? 1891 में श्रीलंका के एक बड़े भंते आए थे, अनागरिक धम्मपाल। वो जब 27 साल की उम्र में आए, 27 साल के जब उम्र में आए, महाबोधि बोधगया में आए, महाबोधि की अवस्था देखकर वो रोने लगे, क्योंकि वहां पर पशु की बलि दी जाती थी उस समय। जो स्थिति आप देख रहे हैं ये स्थिति नहीं थी। वहां को एक महंत कब्जा किया हुआ था और कुरीति लगा दी गई थी वहां पर। उन्होंने 1891 में आकर रोने लगे और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं महाबोधि महाविहार मुक्त करा के ही रहूंगा। अनागरिक धम्मपाल धम्म के प्रति और धम्म के नियम के अनुसार बहुत दयालु व्यक्ति थे। उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा अभी पढ़ के सुनाएंगे बनते जी। आज 29 अप्रैल है। 29 अप्रैल 1933 में उनकी परिनिर्वाण होती है। तो आज 29 अप्रैल में ये धरने स्थल पर उनकी याद में उनके श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके जो सपने थे उसको पूरा करने के लिए या भिक्षु संघ, उपासक उपासिका संघ सब यहाँ पर आज उनके पुण्यतिथि को, उनके जो परिनिर्वाण दिन को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। एक छोटा सा कार्यक्रम रखे हैं। अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं अनुरोध करता हूँ सभी भिक्षुओं को, पहले ये सीनियर भिक्षु जो सामने बैठे हुए हैं वो सामने जाएंगे, अनागरिक धम्मपाल को पुष्पांजलि करेंगे, वहाँ पर दीप जलाएंगे और सूत्र पाठ करेंगे और उनके पीछे पीछे भिक्षु संघ चलेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूँ यहीं से बंटी जी तो खड़ा हो जाइए, आप वहाँ पर सामने जाए और सभी एक लाइन पर चलेंगे जी। नहीं चलिए ये लाइन से आइए, उधर से आइए। जय बंटी जी, शिलानंद बंटी जी घूम के जाइए। एक एक लाइन करके आप लोग आइए। हाँ मैं अनागरिक धम्मपाल की पुण्यतिथि मना रहे अभी थोड़ी देर में। बंदे जी सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, यहाँ पीछे आ जाओ। सभी भक्ते लोग आ जाइए यहाँ पे। जाओ। अच्छा अगरबत्ती ठीक है, थोड़ा पीछे ऐसे पीछे जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे जाइए, पीछे 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 सब ऐसे आ जाइए सभी। सभी अपने जगह से हाथ जोड़ करके सभी चले आए ना, सभी सभी आइए 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 सभी आइए। थोड़ा सा रुक जाइए बंदे जी, अभी थोड़ा रुक जाइए और सब लोग यहाँ आइए। यहाँ से पूरा यहाँ से ऐसे गोल बनाइए, आइए गोल बनाइए यहाँ से, हाँ गोल बनाइए, आइए यहाँ तक आगे आगे तक के आइए इधर।
आइए यहाँ बस। हाँ, बनते लोग सभी आ गए। हाँ, उपासक लोग ये साइड में। हाँ, यहाँ आ जाओ, ऐसे आ जाओ, 2 लाइन 3 लाइन कर लो, 2 लाइन 3 लाइन कर लो। उपासक एक साइड में आ जाइए, इधर आ जाइए, बनते लोगों के बीच में मत आइए, बनते लोगों को एक साइड हो जाइए। हाँ ठीक है, और बनते लोग जो है आ जाइए इधर में, कुछ ये साइड से आ जाइए। हाँ सभी भक्ते लोग आ जाइए। ये बच्चा लोगों चप्पल वगैरह उधर उतार के आओ। ठीक है, आगे सभी बनते हैं। हाँ आ जाइए इधर, और थोड़ा थोड़ा ऐसे करके आ जाइए। सभी लोग अपने अपने स्थान पे हाथ जोड़ करके खड़े रहें। अगरबत्ती मोमबत्ती जो है यहाँ दीप प्रज्वलन करेंगे बनते जी, शिलानंद जी महाथेर हो। हाँ वन्न गंध गुणोपेतांगीतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्सा श्रीपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मित्रेण लभामि मोक्षं कोपं विलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं घनसारपदित्तेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवा धातवो धातुगभ्ये लङ्काय जम्बूद्वीपे तिदशपुरवरे नागलोके चतुपे सापे बुद्धस्य बिम्बे सकलदशदिशे केशलोमादिधातु वन्दे सापेऽपि बुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सपं सपठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यासमूले निसिन्नो वा सपरिविजयं अका पातो सपयुक्तं सत्था वन्दे तं बोधिपादपम् इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एहिपसिको औपनयिको पद्धतं वेदितपो वियो इति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अर्थपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संघो
आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाति सपपापस्सकरणं कुशलस्सौपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं गीतं बुद्धानं शासनं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा। आज अनागारिक धम्मपाल जी के स्मृति दिवस पर यहाँ पर तमाम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से अनागारिक धम्मपाल जी को श्रद्धांजलि के लिए यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं। धूप दीप जला करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके जीवन और कार्य को हम लोग याद करते हुए आज की विचार गोष्ठी रखी हुई है और यहाँ उनके जीवन कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए अभी यहाँ धम्म सभा शुरू होगी। अभी जो के पास में मोमबत्ती है अगरबत्ती है जला करके और अपना अपना स्थान सभी लोग ग्रहण करेंगे। वहाँ पे बिठा करके बोले। अनागारिक धम्मपाल जी जो है ये जॉन डेविड बचपन में रहे, लेकिन उनकी माता ने उनको धम्म के अभ्यास में पारंगत किया। बड़े उद्योगपति घराने के रहे और उद्योगपति घराने में रहने की वजह से उनके पिताजी चाहते थे कि उनका कारोबार देखे। माँ चाहती थी कि बुद्ध धम्म को यहाँ पर जो ब्रिटिश लोगों ने जबरन लादा हुआ क्रिश्चियनिटी तो उसको यहाँ से हटाए। तो अनागारिक धम्मपाल जी का बचपन से ही जीवन जो है बहुत अलग ढंग का रहा है और धीरे धीरे जब उन्होंने विद्रोह शुरू किया तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग अलेक्जेंडर कनिंघम और बहुत से लोग जो उस समय में ब्रिटिश वहां पर आए हुए थे उनके साथ वो भारत यात्रा में आए और भारत यात्रा में आने के बाद उन्होंने अपने जीवन में संकल्प लिया कि तथागत बुद्ध के जो स्थान है उन स्थानों की दुर्दशा को मैं ठीक करूंगा। बुद्ध धम्म को मैंने तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया उस स्थान को मैं आजाद कराऊंगा। तो उसके लिए वो आजीवन संकल्पित रहे और जीवन भर देश और दुनिया में यात्राएं करते रहे और बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने शिकागो के वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में 1893 में 17 सितंबर को एक भाषण दिया है। बहुत गजब का भाषण है। तो अनागारिक धम्मपाल जी विश्व विख्यात विभूति थे और उन्होंने बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए तमाम देशों में विदेशों में यात्राएं की। 1891 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में की। महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका की कोलंबो के अंदर उसका हेडक्वार्टर रखा और इंग्लैंड में भी महाबोधि सोसाइटी की स्थापना करके वहां पर भी जमीन खरीद के वहां बुद्ध विहार बनाया और जीवन भर काम करते रहे। बुद्ध धम्म के उत्थान के लिए कोर्ट में लड़ते रहे और प्रिवी काउंसिल लंदन तक के लड़ते रहे महाबोधि विहार के मुक्ति को लेकर के। और 1933 में अंतिम समय में कुछ साल के लिए वो भंते बने थे। अनागारिक जीवन भर रहे और भंते बन करके देवमित धम्मपाल जी जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा, आज जो है 29 अप्रैल का दिन एक यादगार दिन है। 1933 में वो गुजर गए। उसी के बाद महाबोधि सोसाइटी के मांग पर ये बोधगया टेम्पल एक्ट बना था, उसमें काफी चर्चा होकर के बना और उस समय बौद्धों की आबादी न होने की वजह से उस समय में वो ज्यादा लड़ भिड़ भी नहीं सके। डी वली सिन्हा जो सेक्रेटरी थे तो वो जो उनका काम था वो अधूरा, ये बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर के वो अधूरा काम पूरा करने के लिए हम लोग जिस धरने को बैठे हुए हैं, आज 77वां दिन है और 77वें दिन अनागारिक धम्मपाल जी के पुण्य स्मृति में स्मृति दिवस में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके गुणों को याद करते हैं और उनके संघर्ष को याद करते हैं कि भारत भूमि में तथागत बुद्ध के धम्म की वापसी के लिए उन्होंने जो भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए तो उनको याद करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे
तमाम सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। अनागारिक धम्मपाल जी अमर है, बाबा साहब अम्बेडकर अमर है। अमर रहे बोलने वाले नहीं, अमर है काम उनका अमर है, क्योंकि उसको अमर है, ऑलरेडी किया हुआ काम है, वो अमर है। हमको है बोलना है, रहे नहीं बोलना है। अनागारिक धम्मपाल जी अमर है, अनागारिक धम्मपाल जी अमर है, अमर है, अमर है, अमर है। अनागारिक धम्मपाल जी अमर है, अमर है। तो बोधिसत्व अनागारिक धम्मपाल जी का जो काम है अमर है, और बाबा साहब ने जो काम किया वो भी अमर है। तो अमर काम जो है, हम लोगों को कुछ जिम्मेवारियां हैं कि उनके बचे हुए काम को पूरा करना है। तो आज उनके सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम संकल्प लेकर के अपने अंदर में अपनी बुराइयों का किस तरह से निकालें और अपना कल्याण करें, साथ ही साथ हमारी वजह से औरों का भी कल्याण हो। उसके लिए हमें मेहनत और प्रयास करने की जरूरत है। बहुत बहुत साधुवाद, सभी को मंगल कामनाएं। अभी हम लोग जो आज के धम्म गोष्ठी जो है उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। अब तमाम भक्ते लोग हैं, इधर से जाकर के इधर से चलेंगे। सभी उपासक लोग अपने अपने यहाँ पर धूप जलाए, पुष्पांजलि दे। और अनागरिक धम्मपाल जो हो बौद्धों के लिए एक प्रेरणा की स्रोत है। तो सभी पुष्पांजलि करें, उसके बाद कार्यक्रम शुरू करते हैं। रुमाल पडली का तुमची? जी सभी जन बैठ जाए। घ्या ना एखादी फूल. थोडा थोडा